To me, beauty is inclusion. Every size, every color. That's the world I live in. A beautiful quote by Prabal Gurung, fashion designer. Not to judge people as who they are, but to accept them as they are. Welcome to this episode of a podcast of hope, making way to hashtag inclusive community, a collaborative initiative by Little Storytellers and Bachpan Ke Pitare Se. Let's now listen to a real life story. You tell me, Astha, am I a bad mother? Her voice was trembling as she was speaking continuously on phone from last 10 minutes, telling me about the bad day she had. Her 5-year-old special needs son's behavior meltdown last night at marriage function and relatives whispering after that. You know my husband's routine. कितने बिजी रहते हैं वो. I don't want to disturb him. अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से इतनी थेरेपीज की फीस देंगे. Sometimes I feel I'm not able to handle anything. My in-laws feels that he's special needs because of some पिछले जन्म का पाप and all. तुम बताओ ऐसा होता है क्या? I was just listening because I knew that right now she needs someone to just listen her. I could have stopped her and said lots of things to pacify her, like, you are a special mom, dear. God has chosen you to take care of His lovely gift to you. You need to be patient for your child. We all special needs parents are sailing in the same boat. Start ignoring people, and so on. But I don't know why I couldn't say anything to her that day. Nothing. I don't know why. Suddenly, for that moment, for me, she was a daughter who lost her mother 4 months back, who can't even cry openly because she doesn't want to pass her anxiety to her son. How helpless she must be feeling right now. I took a deep breath और पता नहीं क्यों बस इतना ही कह पाई, खाना खाया तुमने? Suddenly she stopped talking. It was obvious that she was not expecting this from me. She was silent, didn't say anything. I asked again, सुबह से कुछ नहीं खाया ना? Go and eat something first. After that, go and give a big tight hug to your son. वैसे ही जैसे आंटी के गले लगती थी. I could feel the tears rolling down from her eyes. She cleared her throat and said, Thanks आस्था, मैं बाद में बात करती हूँ. Few weeks back, one of my friend called me and said, Astha, my sister's son has recently been diagnosed with autism. Please tell me how can I help her? Obviously, I can't help her in finding a right therapist or a doctor, so क्या करूँ? Feeling so helpless. I replied, डॉक्टर्स के लिए गूगल हैं. यू बी दैट वन पर्सन जो उसे समझे, जिससे वो कभी भी बात कर सके. एंड अबव ऑल, जो उससे ये पूछे, कुछ खाया तुमने? जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे इस धरती पर लाने वाले दो शख्स माता पिता यानी पेरेंट्स बन जाते हैं. पर वही बच्चा अगर क्लिनिकली या मेडिकली किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के लिए डायग्नोज कर दिया जाता है तो वही पेरेंट्स स्पेशल नीड्स पेरेंट्स बन जाते हैं और बच्चा स्पेशल चाइल्ड. नमस्कार, आई एम आस्था चड्डा, राइटर, स्टोरी टेलर एंड अबव ऑल अ स्पेशल नीड्स मदर. I'm happy to be on this platform to share my journey with all of you. From parent to being called special need child's parent, the transformation that you shared with us and introduce yourself. Thank you, Astha, for sharing valuable insight from your life journey. But for our audience, be it radio, television, print, public relations, digital platforms, her journey as a media professional has been enriching and eventful. Her passion for voiceover started with EMPC of IGNOU 23 years back. She used to give voice for their educational channel. Her stint took her to AIR and she joined them as a newsreader. Presently, she is associated with different NGOs, storytelling associations, and book clubs. She does storytelling sessions, writes stories, and through that, she tries to create awareness about inclusion and diversity. Her dream is to sensitize our future generation to make the world more inclusive. Welcome, Astha ji. Thank you so much to accept to be a part of this series. Hearty welcome. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me. तो आशा जी, आपने इतना कुछ किया हुआ है. यू हैव अ प्रोफेशन इन, यू आर अ मीडिया प्रोफेशनल.
तो अपने और स्टोरी टेलिंग भी काफी डिमांडिंग जॉब है, और जिस तरह से आप बिजी रहते हो, सो हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेशली बीइंग अ मदर ऑफ अ चाइल्ड विद एडिशनल नीड्स? तो आप प्लीज अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताइए हमें. Yeah, of course, Deepa. I would love to share that. Actually, like all other special needs parents, my journey has been very like challenging. बहुत कुछ रहा, उतार चढ़ाव. एंड जैसे कि मैंने बोला, बाकी जो पेरेंट्स हैं वो सब इस चीज से गुजरते हैं, डिनायल, एक्सेप्टेंस, देन एंड ऑल दैट साइकिल ऑफ ग्रीफ एंड एवरीथिंग. सो सेम थिंग हैपेंड विद मी, बट ये एक चीज इसी वक्त मैं सब पेरेंट्स को कहना चाहूंगी. द सूनर यू रियलाइज कि हाँ, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं या सुधार सकते हैं, तो इट विल बी बेटर. बिकॉज ये ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को खांसी जुकाम या कुछ है. एज वी ऑल नो, ऑटिज्म एंड ऑल अदर डिसेबिलिटीज आर लाइक काइंड ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. एंड तो वो एज आई सेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक टाइम पीरियड लेकर अपनी लाइफ को भी कंस्ट्रेंट कर दे कि हाँ ठीक है, बच्चा 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद आई विल रिज्यूम माई वर्क या आई स्टार्ट वर्किंग अगेन. तो ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमें लेकर चलना है, वेदर इट्स आवर ओन करियर, वेदर इट्स आवर फैमिलीज प्रायोरिटीज, और ऐसे पेरेंट्स के लिए जो कि मतलब जो बच्चे के मतलब बाकी सिबलिंग्स भी हैं. सो यू हैव टू prioritize and plan your life accordingly to your special needs kid. So this is the thing what I did. I realized कि एक काम जो है मेरा, जो करियर था, मतलब because you asked me कि how do I manage that. So I realized कि ये जो चीज है ये मुझे एक kind of a break देती है. So when it comes to storytelling, I would like to share कि storytelling started with my daughter only. So I Okay. used to teach her activities of daily living through storytelling. Then I Okay. realized कि नहीं, this is a very powerful tool, and you can Mhm. say medium to teach kids a lot of Right. different activities or daily living skills, which I would like to share about all that. And Yes. मैं अभी बताऊंगी उनके बारे में. तो मैंने ये रियलाइज किया कि नॉट ओनली दिस थिंग गिव्स मी अ काइंड ऑफ ब्रेक, या ये बल्कि हर एक पेरेंट्स के लिए ये अच्छा है कि वो किसी तरह का कोई एक पैशन या हॉबी डेवलप करें, जो कि उन्हें मतलब ये अपने बच्चे के साथ काम करते हुए ये ना लगे कि हमने अपना करियर खो दिया या हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे. तो इनफैक्ट दैट गिव्स यू सम काइंड ऑफ एन एनर्जी टू डील विद ऑल द अदर प्रेशर्स एंड एवरीथिंग. दैट्स द थिंग. So well said. I 100% agree. So parent with special needs or no not, मुझे लगता है हर पेरेंट को ना एक एक्टिविटी या एक हॉबी हमारी होनी चाहिए, एक पैशन, जी जी, जिससे ना बिल्कुल. हमें ताकत मिलती है, क्योंकि पेरेंटहुड अपने आप में एक चैलेंज है, राइट? और फिर जी बीइंग बिल्कुल. एडिशनल नीड्स वाले बच्चे को अटेंड करना. आस्था जी, ये आपकी बेटी का, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, व्हाट या एग्जैक्टली वाज द डायग्नोसिस एंड व्हेन वाज इट डायग्नोस्ड, और उसके सी बाद कैसी रही आप, जी. मतलब? See, my daughter Tarini, abhi she has just turned 19 last month. Tarini was diagnosed when she was like kind of exactly, you say, 4.5 years old, which I feel now was quite late. Because that time, honestly speaking, though I was from a media background, I had my education in mass communication and everything. But if you ask me, honestly speaking, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसे डायग्नोज होते हैं या ऑटिज्म होता है या सीपी होता है या इवन एडीएचडी. आई हैड नो आइडिया, नो क्लू at all. So all her milestones were delayed, whether it was neck holding, sitting without support, yeah, walking without support, everything was delayed. But मतलब मैंने कुछ ऐसा हम लोगों ने, इनफैक्ट मैंने और मेरे हस्बैंड ने, we never realized कि this can be due to some kind of a like you can say disability or whatever. This can be a neurological disorder or whatever. So but ठीक है, वो चल रहा था. And then we were in, actually when she was very small, we were in Singapore. So we realized कि नहीं, walk भी late हुआ and everything. We moved back. We thought maybe it's like कि social, she's not getting a proper social circle, और अपने लोग नहीं मिल रहे, that's why she's not talking or speaking at all. And we came back and we showed her to different doctors, and then they asked us to go for MRIs, and endless list of tests happened. But
हमें रियल चैलेंजेस तब फेस होने लगे व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्कूल्स। तो वो शी वाज Okay. हाँ शी वाज गोइंग टू अ प्ले स्कूल इन सिंगापुर एंड आई डोंट नो वहां पर कभी भी कंप्लेन नहीं आई। बट व्हेन वी मूव बैक टू इंडिया, so the she was going to one international play school and then they said कि नहीं नहीं ये कुछ रिपीट नहीं करती, she doesn't take commands और बच्चों के साथ रिपीट नहीं करती एंड ऑल। सो हमारा that time main focus was on walk. Her gait was not normal, wobbly था, थोड़ा Okay. चलते हुए गिर जाती थी एंड ऑल। तो हमारा फोकस इन सब पे, स्पीच वगैरह पे, तो एज यू नो दैट फैमिली में इट हाँ, हैपेंस कि correct. ये लेट बोले थे तो ये भी बोल लेगी एंड ऑल। सो हाँ, वी हाँ. वर काइंड ऑफ रिलैक्स्ड फ्रॉम दैट पार्ट कि Easy नहीं ठीक है going. वो हो जाएगा, बट वॉक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड देन उस पूरे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट ओनली अबाउट वॉक, दिस इज समथिंग एल्स। तो देन लाइक जो हमेशा से बाकी पेरेंट्स के साथ होता है, एंड देन द डॉक्टर सेड कि नहीं शी इज हैविंग एडीएचडी, और विच मतलब सरप्राइजिंगली वी लेटर फाउंड आउट कि वो डायग्नोस ही गलत था व्हेन वी मूव टू यूएस। तो है. मतलब मतलब ठीक, एंड देन एक तो डायग्नोस गलत, एक तो कुछ तो हाँ गड़बड़ है वो समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसको पहचानने में डिले हुआ। ऊपर से जब डॉक्टर हाँ को दिखाया तो उसने डायग्नोस भी गलत किया. right. And he said कि I will not take the name of that doctor, and he is quite famous in that special needs setup or circuit you कह लीजिए। ओके. हर एक माँ बाप who is from Delhi NCR, तो आई एम श्योर 85% पेरेंट्स तो उन डॉक्टर्स के पास जाते ही जाते हैं। तो हाँ. इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो वो एंड देन ही सेड कि नहीं, शी हैज एडीएचडी, एंड देन वी स्टार्टेड ऑल द थेरेपीज, ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एवरीथिंग स्टार्टेड। एंड तो स्कूल में, एंड देन फॉर्मल स्कूल स्टार्ट हुआ। शी वाज गोइंग टू डीपीएस इंटरनेशनल। अगेन वही सेम थिंग विच हैपेंस विद ऑल द पेरेंट्स, वी स्टार्टेड गेटिंग कंप्लेन। हालांकि वहां पर जो इसका एडमिशन हुआ था वो अपने मेरिट पर हुआ था। सो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स पॉइंट एंड एवरीथिंग लगता है दैट हैपेंड, बट दे टुक हर टेस्ट। सो बट आफ्टर फ्यू वीक्स वी स्टार्टेड गेटिंग कंप्लेन्ट्स फ्रॉम स्कूल की ये बैठी रहती है, कुछ नहीं करती, रिस्पॉन्ड नहीं करती एंड ऑल, एंड शी वाज जस्ट लाइक 4.5, ऐसे ही 5 बिटवीन उसके, सच अ स्वीट क्यूट चाइल्ड। एंड सो वी वेंट देयर एंड वी सेड कि वो जैसे लाइक तारे जमीन पर में हुआ था ना कि आपके हाँ, बच्चे हाँ, को कुछ स्पेशल, so same thing happened. That entire scene was like whenever I see that, I just feel कि वो वाली सीट पर मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं and that principal is talking to us. So she was like कि नहीं नहीं आपके बच्चे को किसी स्पेशल नीड्स की स्कूल की जरूरत है। एंड अगेन वही, जैसे वो आते वक्त कार में, आई वाज क्राइंग एंड माय हस्बैंड वाज सेइंग कि ये स्कूल वाले को कुछ नहीं पता एंड ऑल, दिस इज ऑल बुलशिट एंड एवरीथिंग। वो सो हाउ लाइक हस्बैंड्स रिएक्ट। सो आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है, बट वी शुड टेक इट सीरियसली, अगर कुछ ऐसा है सो वी शुड रादर गो टू स्पेशलिस्ट। एंड देन ठीक है वो चलता रहा, एंड देन वी मूव्ड हर टू भारतीय विद्या भवन सीपी में। दैट कितना पुराना स्कूल है, दैट इज लाइक हाँ. आई थिंक 50s का है वो। वहां पर शी वाज करेक्ट. गोइंग अगेन, बिकॉज हमारे यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि आइदर प्रॉपर सेटअप नहीं होता, या टीचर्स आर नॉट दैट सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स नीड। अब करेक्ट. जैसे वहां पर एक छोटी सी, द मोमेंट वी वेंट देयर वी रियलाइज कि द स्पेशल नीड सेटअप इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो जस्ट इमेजिन कि तारिणी तो वाज नॉट अ व्हील चेयर यूजर, बट वहां पर बहुत सारे 3-4 बच्चे मैंने देखे जो कि व्हील चेयर यूजर थे। तो द ओके. मोमेंट आई सॉ कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है, मैंने उस वक्त नहीं बोला, बट जब इसका एडमिशन हो गया तो आई वेंट वन डे एंड स्पोक टू द प्रिंसिपल। मैंने बोला आप ये स्पेशल नीड्स का सेटअप तो फर्स्ट फ्लोर में होना डजंट मेक एनी सेंस। जस्ट इमेजिन कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां छोड़ने आ रहे हैं, वो सुबह सुबह कार से उतर रही हैं, जिस भी अपने व्हीकल से उतरकर बच्चे की व्हील चेयर फोल्ड करके उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। तो वो एक जो चीज होती है कि आपको रियलाइज होता है हर सुबह कि मेरे बच्चे को कोई एक स्पेशल नीड्स या एडिशनल नीड है, वो आपको हर सुबह हो रही है, जस्ट बिकॉज मम्मी व्हील चेयर पकड़ रही है और पापा बच्चे को गोदी में उठा के लेके जा रहे हैं। तो शी इज इट सेड कि नहीं पॉसिबल? मैम उसमें
एग्जैक्टली सो शी सेड कि नहीं मैम ये दिस इज नॉट पॉसिबल, एंटायर इंफ्रा को छेड़ना पड़ेगा, जूनियर क्लासेस चलती हैं नीचे, दैट प्ले बहुत छोटे बच्चे हैं वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा मैम दिस इज नॉट फेयर, वो नहीं आ पाएंगे, दोस्त टचवुड वो आर परफेक्टली फाइन फिजिकली, हाँ तो आप ये सोचिए कि हाँ अच्छा चलिए वो भी हटाइए, मैंने कहा एक रैम्प बनवा दीजिए। सो शी हाँ, सेड कि नहीं रैम्प के लिए तो प्रॉपर वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी एंड ऑल, वो वो एक लंबा that is government लंबा aided school, प्रोसीजर होगा। भारतीय, हाँ। So she said कि नहीं वो होगा but it will take some time, and then she said कि आप क्यों इतना वो कर रही हैं, तारिणी doesn't have any specially, so I said नहीं मैम आप उसको मेरा वो अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया कोई कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, I did not find it quite good, so मैंने बोला नहीं मैम मुझे लॉजिकल हाँ ना, आपने एक स्पेशल एग्जैक्टली नीड सेल बनाया हुआ है और आपको पता हाँ है हाँ हाँ कि आपके यहाँ व्हील चेयर पे बच्चे आते हैं, उसके हाँ बाद में भी मतलब ये तो एक कॉमन सेंस या एक ह्यूमैनिटी वाली बात हम कह सकते हैं, राइट? ये कॉमन सेंस एग्जैक्टली इस्तेमाल एंड दैट करो वाज कि हाँ दैट वाज ईयर 2009 और 10 की बात है। सो तारिणी वाज बोर्न इन हाँ 2005, सो 10 की बात है। एंड देन क्या हुआ कि सडनली वन डे आई गॉट अ कॉल कि तारिणी पीड इन हर पैंट्स, सो शी हैड एन एक्सीडेंट, बिकॉज क्या हुआ मुझे उसका रीजन पता लगा, उनके पास वो दैट इंडियन टॉयलेट था, so that was not and Tarini was not used to go in that, and not only that Tarini को obviously walk issue था, तो her knees were very weak, तो वो ओके squat करके बैठ ही नहीं पाती थी। तो ओके and I was like once again ये एक WC की बात है, एक सीट की बात है, एक टॉयलेट सीट की, आप उसको हटा के आप एक वो लगा सकते हैं दूसरी। तो करेक्ट। मैंने मैम को बोला, शी सेड, तो वन ऑफ द टीचर सेड आप मिसेस चड्डा क्या हर थोड़े दिन बाद झंडा लेके क्या शुरू हो जाती हैं, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए। तो मैंने कहा नहीं ये मेरा मेरे मेरे अब आप लास्ट टाइम कह रही थी आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी डॉटर को नहीं है, तो मैंने कहा अब आप बताइए। सो आप ये सोचिए कि मैं क्या होता था एवरी डे फ्रॉम लाइक इंदिरापुरम टू, मैं इसको लेके आती थी टू सीपी, एंड आई यूज टू कैरी वन एक्स्ट्रा पेयर, बिकॉज मुझे पता होता था मेरी बच्ची गई होगी वॉशरूम एंड देन शी मतलब मैनेज नहीं कर पाई होगी, शी विल बी इन डर्टी क्लोथ्स एंड ऑल, तो मैं उसको पहले ले जाती थी सीपी में, वहां पे बंगाली मार्केट में रेस्टोरेंट में जाके चेंज करके गाड़ी में बिठा के देन लेके आती एंड ऑल। तो वो एंड एक दिन आई गॉट अ कॉल कि आप उसको ना लेके जाइए, तो वो मॉर्निंग में ही ना मतलब जैसे कि शी वेंट टू पॉटी अगेन, शी कुड नॉट मैनेज। आप ये सोचिए हेल्प भी नहीं दी हुई कोई एक हेल्प, वो बस इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप इसको थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया कीजिए, शी कैन सिट बट नॉट विदाउट सपोर्ट, सो शी सेड ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो अब वो मॉर्निंग में 7:30 स्कूल स्टार्ट होता था, तो आई गॉट अ कॉल, मैं घर पहुंची एकदम एंड देन आई रिसीव्ड अ कॉल, नहीं ले जाइए। तो बिकॉज वो पॉटी सारा कपड़ों में, आई वेंट देयर, शी वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर, मक्खियां बैठी हुई थी इसके ऊपर, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या क्या व्हाट इज दिस। तो मैंने मैम को उस दिन बोला, मैंने कहा मैं दिस इज लाइक इनह्यूमन, मैंने कहा मैं आप ये सोचिए आप बच्चे को कैसे मतलब वो कर, ठीक है मैं नहीं कह रही आप अ, उसके कपड़े धोइए या जो भी है, बट एटलीस्ट उसको बोलिए बेटा रिमूव योर पैंटी, एंड एक पैंटी जब साफ हो गया तो वो उतर गई, वो दूसरी तो पहना दीजिए एटलीस्ट, तब तक बच्चे को, मेरे को आने में 1 घंटा लगेगा एटलीस्ट फ्रॉम इंदिरापुरम टू सीपी। एंड देन शी सेड नहीं ये हमारे दीदी ये लोग काम नहीं करते हैं। तो आई वॉज अगेन लाइक उस दिन आई डिसाइडेड आई विल नॉट सेंड माई डॉटर टू दिस स्कूल, बिकॉज वो आप ये सोच के देखिए कि, और एक बात मैं यहाँ पर पूरे जोर से कहना चाहूंगी, हम जब भी ये सोचते हैं ना कि स्पेशल नीड्स बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी पेरेंट्स डन। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग एवरीथिंग, किसी भी बच्चे को वेदर ही और शी इज अ बेड रिडन, मेंटल फिजिकल चैलेंजेस किसी भी लेवल के हैं, दे अंडरस्टैंड एज पर देयर कैपेसिटी एंड देयर आप कह लीजिए स्ट्रेंथ या जो वट एवर। अगर वो मुंह से नहीं बोल पा रहे ना, उनको दिमाग से सब समझ आ रहा है, हम ये ये तो सिर्फ गलत फहमी, और माई डॉटर वॉज गेटिंग ऑल दीज इशारा कह लीजिए या जो भी है इन दी प्रीवियस स्कूल। आप टीचर एक वर्कशीट दे रही है, she used to give like coloring sheets to everyone, and Tarini ka that pencil holding was not there, obviously crayons, सिंगापुर में she was getting special crayons जिनसे ग्रिप बनती थी, इंडिया आते ही मिली नहीं, तो वो नहीं कर पाती थी स्क्रिबलिंग या आपको कह लीजिए कुछ नहीं जैसे कलर, तो टीचर पे शीट खींच लेती थी, छोड़ो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा ये शी वॉज नॉट वर्बल, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, घर आके ना मुझे कलरिंग शीट को हाथ मार मार के बोलती होती,
नो टीचर, नो मम्मा, नो टीचर। तो मेरे को समझ नहीं आता था, अच्छा वो चैप्टर वहां एंड हुआ, तो अब यहाँ पे सोचिए, व्हेन अ चाइल्ड इज सिटिंग विथ लाइक डर्टी क्लोथ्स, और रोज उसको बैठा देते हैं या उसको हो जाता है, एंड द मोमेंट शी यूज्ड टू सी मी, वो ऐसे भाग के आती थी कि मम्मा मेरे को इस जेल से निकाल लो। निकाल दो। तो एंड एवरी डे शी यूज्ड टू क्राई, नो स्कूल मम्मा, नो स्कूल मम्मा, नो स्कूल। मुझे लगता था बच्चे सारे ही रोते हैं। तो मुझे रीजन तब धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि ये सब समझती है। शी फील्स कि आई डू नॉट बिलोंग टू दैट स्कूल, या दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। ये तो स्पेशल नीड सेटअप की बात, जस्ट इमेजिन। ऐसे ही चल ये रहा उन था, एक डेढ़ स्कूल्स साल की बीत बात गया। है, ये उन स्कूल्स की आप बात बता रहे हो जो हाँ, हम ब्रांडेड स्कूल्स हैं, टॉप ब्रांडेड स्कूल स्कूल्स है। ऑफ इंडिया हाँ हैं, हाँ, और और इसीलिए जिनके मैं तो स्पेशल सेल होता ओपनली था। नाम लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड अ ह्यूज फाइट इन डीपीएस। दे सेड कि नहीं नहीं, हम टीसी नहीं देंगे एंड ऑल, है स्कूल लिविंग नहीं मिलेगा, जाइए जाइए। सो वो देन अगेन, बिकॉज मेरे को कोई कहने में वो नहीं है, आई वॉज अ जर्नलिस्ट, मेरी आदत शुरू से झंडा उठाने की थी। तो आई यूज टू फाइट, एंड देन मुझे लगता था मेरा बच्चा अपने लिए नहीं बोल सकता, मैं इसके लिए नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा। कौन लड़ेगा, तो सही देन बात। वो, हाँ, तो देन होता था, बिकॉज वो इनिशियली जैसे हम लोग मूवी देखने गए, वो तंग कर रही है या रेस्टोरेंट में कर रही है। हालांकि हुआ क्या था, कुछ साल बाद तो मैं हंस के रह जाती थी। तो नहीं तो जैसे आसपास से देखते हैं, आपने इसको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, या ये ऐसे ही करती है, ये ऐसे ही रोती रहती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब आपने बोला ना, आप जरूर डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो नहीं तो शुरू शुरू में आई यूज टू फाइट, क्या है, क्या देख रहे हो, कोई तमाशा हो रहा है। तो मेरी, मतलब लॉट ऑफ टाइम लाइक ऐसा होता था। देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट्स नॉट देयर मिस्टेक, दे आर नॉट अवेयर, दे करेक्ट। दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ बच्चे को स्पेशल नीड्स होगी या ऐसा भी कुछ होता है। बिकॉज अगर मेरी बेटी स्पेशल नीड्स नहीं होती, तो शायद मुझे भी नहीं पता होता। तो दे आर नाइव, दे हैव नो आइडिया कि हाँ बच्चा है, उसको स्पेशल नीड्स है, दैट्स व्हाई शी इज शाउटिंग इन पब्लिक, येलिंग, स्क्रीमिंग, व्हाटएवर। तो नहीं बैठ रही, नहीं खा रही, सामान गिरा रही है। तो मैं शुरू से आई यूज टू फाइट। तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं, ये नहीं चल रहा। एंड देन थोड़े दिन और एक दो स्कूल्स ट्राई किए, वहां पे भी वी हैड अ बैड एक्सपीरियंस, सो वी वर जस्ट लाइक गोइंग थ्रू ऑल दैट। एंड शी वाज जस्ट 7, तो ऐसे ही मतलब वी वर रियली वेरी फेड अप, एंड वी वर थिंकिंग कि हम लोग को ये और डॉक्टर्स को दो तीन को डिस्कस करें, मे बी कुछ देयर आर सम अदर इश्यूज व्हिच आर लाइक जो हमें पता नहीं लग रही या क्या है, बिकॉज स्पीच इसकी बहुत डिले थी। तो हम लोग एक्चुअली डायग्नोसिस क्या था? ऑटिज्म था या अब तक एडीएचडी, कुछ डायग्नोज ही ना नहीं ना हुआ ना था? ना, तब तक तो ऑटिज्म सीन में ही नहीं आया था। तब तक तो अच्छा। ऑटिज्म था। हाँ हाँ। एंड जस्ट इमेजिन, वो 4.5 या 5 साल से लेके 7.5 साल तक की एज के में ऑटिज्म पिक्चर में ही नहीं था। सो वी वर, जिसको काइंड ऑफ पेरेंट्स बोलते हैं ना, ट्रीटमेंट, that so-called treatment was on the basis of ADHD. So that all that kya fish, cod liver oil and everything, that medicines were going on. And क्या क्या नहीं ट्राई किया, अदर साइड की चेन्नई से कोई स्पेशल थेरेपी होती है, एंड HBOT on, I don't know what was the exact term, and I used to take her to GK for that. And बालों में वो जैसे हम लोग MRI के वक्त या जो कोई हम लोग को एक मिट्टी लगा के एंड ऑल दैट करते हैं ना, वो सब। जस्ट इमेजिन 5 6 6 6.5 साल का बच्चा वहां जा रहा है, एंड देन दे सेड कि हम लोग ना ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं एंड ऑल वो सब। तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी, प्लीज प्लीज इन सब ट्रैप्स में ना फंसे। दैट टाइम आई यूज्ड टू पे 2500 रुपया फॉर वन सेशन, 2500 रुपये, 2500। एक एंड नॉट सेशन। ओनली दैट, एक सेशन आप बच्चे को इंदिरापुरम से जीके लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग, जस्ट बिकॉज एग्जैक्ट। उन्होंने बोला कि ब्रेन सेल्स में कुछ वीकनेस होती है, दैट फैंसी टर्म्स यूज करे मेडिकल के, इनको तो पल्ले पड़ेंगे नहीं, डू वट एवर। तो एंड मेरे को लगता था कि चलो कोई बात नहीं, अगर बिकॉज इतनी पढ़ी लिखी तो थी कि नहीं हमारा ब्रेन ही सब कंट्रोल करता है। तो मुझे लगता था नहीं नहीं, मे भी ऐसा कुछ है, एंड उससे वॉक भी और इम्प्रूवमेंट हो या स्पीच में हो, तो इट विल बी लाइक फैंटास्टिक। तो जैसे हर पेरेंट्स करते हैं, हमने भी किया कि चलो जैसे करते हैं। जहां उम्मीद मिली, जहां किसी ने हाँ रास्ता दिखाया, वहां चले हाँ हाँ कि हाँ, भाई चलो। इससे एंड ठीक हो दिस जाएगी। इज एग्जैक्टली, एंड दिस इज कम्प्लीटली बुलशिट, ये कुछ नहीं होता, ये जो बोलते हैं ना, बिकॉज सी द थिंग इज, द ओनली थिंग विच कैन लाइक इम्प्रूवमेंट जो दिखा सकती है या विच कैन हेल्प योर चाइल्ड इज लाइक थेरेपीज, राइट टाइम पे अर्ली इंटरवेंशन, और थेरेपीज स्टार्ट कीजिए राइट टाइम पे, राइट एज पे, दैट इज द बेस्ट थिंग।
the more and more you will work with your child, on your child, वो through therapies. That is the thing जो काम करती है. ये सब जो डॉक्टर्स ट्रैप करते हैं ना कि ये अब थेरेपी आई, ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज विच इज क्यूरेबल. इट्स, हम लोग बार बार बोलते हैं, एंड क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको ये कोई आप वेन्स में वो लगा के और ये सब करके ट्रीट कर सके, नहीं. ये मैं अभी भी ऑन एवरेज में 2 या 3 रिसेंटली डायग्नोज बच्चों के पेरेंट्स से बात करती हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल देम, मैंने कहा बिकॉज आप लोगों के लिए स्वाभाविक है, इट्स क्वाइट नेचुरल कि आप इस तरह की चीजों पे बिलीव करेंगे, बिकॉज आपका बच्चा हैज, लाइक योर चाइल्ड हैज जस्ट बीन डायग्नोज्ड, एंड आप हर संभव कोशिश करेंगे. मंदिर, Correct. पीर बाबा, वो सब मैंने भी करा है, मैं आज भी करती हूँ, एंड दैट इज समथिंग विच इज लाइक कि आपका फेथ है, विश्वास है. बट ये आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि वो भगवान के वहां पर तो हर कोई करता है, बट ये आपको पैसा देके वो करने को जो कह रहे हैं, ये दैट इज कम्प्लीटली बेसलेस, क्लूलेस, एंड कहीं मेडिकली. हम लोग, आई हैव बीन टू यूएस में रही, आई हैव स्टेड देयर फॉर 6 years. मेडिकली अमेरिका में भी कोई क्लेम नहीं करते इसको ठीक करने की. वो Okay. इम्प्रूव होता है ऑब्वियसली, वी हैव सीन, हमने इस एंटायर स्पेशल नीड्स नेटवर्क में देखा है बच्चों में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आई है, बट थ्रू थेरेपीज एंड प्रोग्राम्स ओनली, जो कि उनके साथ उनकी स्ट्रेंथ, नॉलेज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाता है. ये नहीं कि हम ऊपर के कोई ये सब देके बच्चे को कोई क्योर कर रहे हैं, बिकॉज एक इट्स नॉट अ चीज डिजीज. हाँ, एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगी. आप थेरेपीज की बात कर रहे हो, थेरेपीज पे ले जाना चाहिए, लेकिन एज अ पेरेंट जिसको अभी नया नया पता पड़ा है कि उसके बच्चे को ऑटिज्म है या कोई तकलीफ है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसको एक जी. सही गाइडेंस तो कोई डॉक्टर ही देगा ना. तो वो सही डॉक्टर पर पहुंचने के लिए आपको 2-3 ओपिनियंस लेने चाहिए. और कौन होता है जो आपको सही तरीके से गाइड करे कि भाई इस थेरेपी पे जाओ. तो मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स? आपने कैसे पहचाना कि मेरे को सी कौन दैट्स, बताए? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और एक चीज होती है, वेदर अ चाइल्ड इज अ न्यूरोटिपिकल और अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, माँ बाप से अच्छा ना बच्चे को कोई नहीं जानता. मेरे हम्म. बच्चे को मैं ये नहीं कह रही, बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकली वी कांट टेल कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है. तो वो एक होता है ना कि हमें बच्चे को भूख भी लगी है तो माँ बता दे कि नहीं लगी, बट उसके लिए भी बच्चे को रोना पड़ता है, तब माँ को पता लगता है कि हाँ उसको भूख लगी है. तो एक्चुअली क्या होता है कि ठीक है, ये बात 100% आई एग्री कि आपको मेडिकली डायग्नोज करने के लिए या फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए कि व्हाट ऑल थेरेपीज माय चाइल्ड नीड्स, आपको एक डॉक्टर ही बताएगा. डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक बताएगा, न्यूरो डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक बताएगा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप उसकी एक तो एक मेरा 19 years का एक्सपीरियंस कहता है कि ना, आप ट्रैक जरूर कीजिए. अगर आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि हाँ आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है, देन यू हैव टू कीप ट्रैक ऑन दैट कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग. ठीक है, एंड इनफैक्ट ये हमको लीगली इट्स अलाउड. जो सेंटर ये कहता है ना कि हम आपको सेशंस नहीं देखने देंगे या आप नहीं बैठ सकते, दे आर एब्सोल्युटली डूइंग इलीगल थिंग्स. मतलब इन दिस सेंस कि इट्स लीगली अलाउड कि आप अपने बच्चे के पास बैठ के देख सकते हैं कि व्हाट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, किस तरह से थेरेपीज करा रहे हैं, क्या नहीं. ठीक है, डॉक्टर ने आपको एक राह दिखा दी, आप उस पर चल भी पड़े कि हाँ ठीक है, बिकॉज दे नो द बेस्ट मेडिकली, दे आर मोर क्वालिफाइड, करेक्ट. दे आर मोर वेल अवेयर, हाँ. सो दे नो. बट ये नहीं है कि उन्होंने बोल दिया ओटी करा रहे हैं, स्पीच करा रहे हैं, मतलब की जरूरत है आप करा रहे हैं. बिल्कुल हो सकता है बच्चे को जरूरत हो, बट एट द सेम टाइम कीप ट्रैक ऑन दैट. उनको पूछिए हर थोड़े दिन बाद, प्लान बनाने को बोलिए कि हाँ ठीक है, अगर आज आपने ये लिए एक्सरसाइजेस उसको चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 3-3 4-4 महीना बच्चा वहीं टाइम पास करके आ रहा है. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दीज, जैसे कि लाइक अगर जितना जल्दी आप बच्चे को डायग्नोज करा सकें, जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करा सके, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू विच यू कैन डू विद योर चाइल्ड. आपने 2 साल की एज में कराया तो ये नहीं कि आप उसका 2.5 और 3 निकल गया आप कहें कि सर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैम ये तो अभी भी नहीं बोल रही. ठीक है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, एवरी चाइल्ड टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप ऑन प्रेशराइजिंग देम. आप उनको बोलिए एंड दैट इज योर राइट. आप ये देखिए कि हाँ ठीक है, पॉइंट कुछ % आ रहा है चेंजेस, बट आ रहे हैं. आप उनको बोलिए एट द सेम टाइम. बच्चे के साथ ये एक चीज मैंने भी देखी है, आपको घर पर बच्चे के साथ काम करना पड़ता है. दोज 45 minutes और 30 minutes का सेशन कांट डू एनीथिंग कि सब कुछ उसमें हो जाएगा.
यू हैव टू वर्क विद योर चाइल्ड एट होम ऑल्सो। कुछ एक्टिविटीज बनाइए जिनके बच्चे और साथ में मतलब लाइक और है, सिबलिंग है, तो उनके साथ करके कोऑर्डिनेट करके कि सेशन मतलब उनसे पूछ के थेरेपिस्ट से कि मेरे को घर पे क्या करना है। तो बट ये है कि हाँ ठीक है, यू हैव टू रिलाई ऑन द थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स ऑन दैट बिकॉज दे हैव दैट प्रॉपर नॉलेज, बट उसको आंख बंद करके मत मानिए। एट द सेम टाइम अपने आप को भी अवेयर रखिए कि व्हाट दे आर डूइंग। और खुद भी सीखिए ताकि घर जाके भी आप उसके सीखिए, साथ में उसको रिपीट सीखना करो। पड़ता है। एंड ये दिस इज द थिंग जो मैं आपको ये एडीएल बोल रही हूँ कि ये आपको ना बच्चे के उठने से लेके सोने तक आपको ना उसकी डेली लिविंग में डालनी पड़ती है, एडीएल एक्टिविटीज मतलब ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ एक्टिविटीज डेली ऑफ लिविंग। डेली लिविंग। हाँ, ओके। तो वो आपको उसको उठाने से लेकर बड़े भी हो जाते हैं। तारिणी अभी भी स्टिल शी वेक्स अप विद लाइक हर प्लेलिस्ट, वो गाने सुन के ही उठती है। तो मतलब हर एक, लेकिन बट आई नो कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो क्रैंकी होती है मॉर्निंग में, या कुछ है टाइम टेबल चेंज हो जाए, मान लीजिए इट्स रेनिंग, आई कांट टेक हर आउट या कुछ है, तो वो आपको छोटे से में ही उनके डेली लिविंग स्किल्स उसमें उनको सिखानी पड़ती है। एंड देन ये ओनली 45-30 मिनट्स के सेशन कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी विद देम, यू हैव टू वर्क विद देम। मतलब चॉइस तो है ही नहीं ना, आपको जो मेहनत करनी है वो खुद करनी हाँ है, विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलिस्ट, ताकि हाँ आप उसकी हाँ। प्रोग्रेस को। और ऐसा मैंने जितना नोटिस किया है या जितना मैं दूसरों से बात करके, आपने छोटा सा मेरा 2 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस था स्पेशल बच्चों के साथ में, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि हर छोटी छोटी चीज के लिए ना बहुत टाइम लगता है, तो हम इम्पेशेंट हो एग्जैक्टली। जाते हैं कई बार, है ना। तो वो 1% भी जी। अगर कुछ पॉजिटिव एक सही डायरेक्शन में बढ़े, तो मेरे ख्याल से हमें उसमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ स्लो जर्नी आफ्टर ऑल, हाँ हाँ राइट। और बिल्कुल। ये नेचुरल हाँ, प्रोसेस है, तो हम प्रेशराइज तो किसी को नहीं कर सकते। अगर हम डॉक्टर को भी नहीं प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं या ओटी को भी प्रेशराइज, जल्दी कर, तो जल्दी तो कुछ हम्म, होता नहीं है। सिर्फ ये है कि जल्दी आप तो नहीं होता। अपनी मेहनत करो, ये है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से यू आपके हैव टू बी कहने वेरी का पेशेंट। हाँ। मेरे ख्याल से आपके कहने का हम्म। मतलब ये था कि ट्रैक रखो, दैट मीन्स कि भाई कोई हाँ आपको बेवकूफ एग्जैक्टली, ना बना सके, है ना, सिर्फ पैसे ही बेवकूफ ना ना बना बनाते पाए कि रहे आप आप सिर्फ। सालों साल, बिकॉज हाँ। दीज, हाँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। ये बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंड मैं खुद देखिए, मैं तारिणी स्टार्टेड स्पीकिंग जिसको कहते हैं हम बोलना एट द एज ऑफ 8 and 8.5। जब बहुत पेरेंट्स मुझसे आप पूछते हैं ना ये शुरू से इतनी बात करती थी, मैंने कहा जी नहीं। ये आपको लग रहा है, मैंने भी 8-9 साल वेट किया है। अब मम्मा बात करती है। आप ही गुजारा किया है। हाँ, अब तो शी मतलब टचवुड। अब तो मैं उसको रात को बोलती हूँ चुप हो जाओ बेटा, सो जाओ। बिकॉज ये चीज भी मैंने ही शुरू करी थी। आई यूज टू टॉक विद हर बिफोर गोइंग टू बेड 30-40 मिनट्स, कि ये कुछ बोलेगी, मुझे दिन का बताएगी। तो शुरू के सालों में तो डिसअपॉइंटमेंट होती थी, मम्मा स्लीप करके सो जाती थी। तो जस्ट इमेजिन, मैंने वो मतलब ऑब्वियसली मतलब जैसे डायग्नोज के बाद से 6-7 साल रेगुलरली आई यूज टू डू दैट। तो अब वो इसकी इतनी हैबिट पड़ गई, एवरी डे शी टॉक्स कंटिन्यूअसली फॉर 30-35 मिनट्स। तो पूरा दिन का एंड ऑल, तारिणी सो जाओ, तारिणी सो जाओ। सो अभी Right. ऐसा है। तो मतलब वो बिकॉज वो उसको हैबिट पड़ी हुई। सो आई यूज टू डू दैट। पहले आई यूज टू टेल हर स्टोरीज, मतलब कैरेक्टर्स बना के झूठा झूठा, एंड पूरे दिन का उससे पता करने के लिए स्कूल में क्या हुआ एंड ऑल दैट। सो हाँ, अब वो ये हो गया है कि नाउ शी डज दैट, आई वांट टू टेल यू। तो बढ़िया। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। हाँ, दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। आशा जी, आपकी बातें सुनकर ना मन में और बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ रही है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की कंसिस्टेंसी के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में हमें बताया, जो गलतियाँ कि पेरेंट्स अवॉइड कर सकते हैं अपने बच्चों की थेरेपीज़ का ट्रैक रख के। और आगे भी हम लोग जानना चाहेंगे, आई एम श्योर ऑडियंस इज़ ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि आपने तारिणी को किस तरह से ट्रेन किया, वो आज 19 साल की उम्र में कितनी इंडिपेंडेंट है। और आपके एक्सपीरियंसेस से हम और जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है एज अ पेरेंट टू ब्रिंग अप अ हैप्पी चाइल्ड। तो इन सब चीज़ों के बारे में और बात करना चाहेंगे हम अगले एपिसोड में।
पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड, क्योंकि मुझे लगता है हम एक जस्टिस नहीं कर पाएंगे अगर चीज़ों को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप पार्ट 2 में भी हमारे साथ आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस की जर्नी, अपनी लर्निंग्स हमारे ऑडियंस के साथ और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग सीखें कि हम आगे अपने बच्चे को कैसे कर सकते हैं या अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हुए अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, खूब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और सुनते रहिए बचपन के पिटारे से और लिटिल स्टोरी टेलर्स का ये पॉडकास्ट, मेकिंग वे टू #inclusive community, a podcast of hope. Thank you. Have a good day.